औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से यूनिट नंबर 7 की रीडिंग करेंगे और इसके साथ इसकी ट्रांसलेशन के अलावा इसकी एक्सरसाइज जो है अपनी वो कंप्लीट करेंगे। द वुमेन टॉपिक है यूनिट नंबर 7। टॉपिक है यूनिट नंबर 7 का द वुमेन एंड हर बियर, औरत और उसका रीछ। ये एक कहानी है जो कि कुतुब शुमाली इलाके की एक बूढ़ी खतून के मुतल्लिक है जो एक यतीम बर्फ़ानी बच्चे रीछ को गोद में ले लेती है मुतबन्ना बनाने के लिए। मुतबन्ना ऐसे बच्चे को कहा जाता है जो हकीकी औलाद तो नहीं होता, लेकिन उसको आपने पालने के लिए ले लिया होता है, उसको गोद ले लेते हैं। ऐसे बच्चे को मुतबन्ना कहा जाता है। ये मुतबन्ना के लिए एक माँ की मोहब्बत की एक दिल गरमा देने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जो ख़वातीन तबका जिससे हमेशा मोहब्बत करेगा। ये किसी तरह भी वजूद में आई, ताहम ये हसीन मौसम में सरमा की दुनिया में जो है ये कहानी अपनी परवरिश पाती है। अब सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। लॉन्ग अगो इन द फार नॉर्थ देयर लिव्ड अ विलेज ऑफ पीपल नोन एज द Inuit. Long ago in the far north, there lived a village of people known as Inuit. They lived on the shores of the icy Arctic, and they depended upon the fishing of the salmon and seal and the hunting of the creatures of the snow to feed themselves. All the young men of the village were hunters and fishermen. One old woman lived alone. She had no husband and no sons to herd or fish for her. Though her neighbors shared their food with her, as was their custom, she was lonely. She longed for a family of her own. She often walked along the shore looking far out to sea, praying that the gods might send her a son. One cold winter day, the woman was walking by the sea when she spotted a tiny white polar bear sitting all alone on the thick ice. At once, she felt a kinship towards him, for he looked as lonely as she. His mother was nowhere in sight. Someone must have killed her, she said softly, and she walked into the ice, picked up the cub, and looked into his eyes. You will be my son, she said. She called him König. I repeat. Long ago in the far north, there lived a village of people known as the Inuit. They lived on the shores of the icy Arctic, and they depended upon the fishing of the salmon and seal and the hunting of the creatures of the snow to feed themselves. All the young men of the village were hunters and fishermen. One old woman lived alone. She had no husband and no sons to hunt
or fish for her. Though her neighbors shared their food with her, as was their custom, she was lonely. She longed for a family of her own. She often walked along the shore looking far out to sea, praying that the gods might send her a son. One cold winter day, the woman one day, one cold winter day, the woman was walking by the sea when she spotted a tiny white polar bear sitting all alone on the thick ice. At once she felt a kinship towards him, for he looked as lonely as she. His mother was nowhere in sight. Someone must have killed her, she said softly, and she walked into the ice, picked up the cub, and looked into his eyes. You will be my son. She said she called him König. स्टूडेंट अब हम यूनिट नंबर 7 की फर्स्ट पैराग्राफ के जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। यूनिट नंबर 7, द वुमेन। And the beer. Words, meanings. Tale, कहानी। टेल, कहानी। इनवाइट, दावत देना। इनवाइट, दावत देना। अडॉप्ट, अडॉप्ट्स, गोद ले लेना। अडॉप्ट्स, गोद ले लेना। आरफन, यतीम। आरफन, यतीम। यतीम ऐसे बच्चे को कहते हैं जिसके वालिद जो हैं वो रज़ाए इलाही से वफ़ात पा जाएं, उसको हम आरफन कहते हैं। पोलर बियर, बर्फानी रीछ। पोलर बियर, बर्फानी रीछ।
हार्ट वार्मिंग, दिल गरमाने वाली। हार्ट वार्मिंग, दिल गरमाने वाली। स्टॉक, वीरान। स्टॉक, वीरान। शोर्स, किनारे। शोर्स, किनारे। आइसी, बर्फीले। आइसी, बर्फीले। आइसी, बर्फीले। आर्कटिक, कुतुब शुमाली। आर्कटिक, कुतुब शुमाली। सैल्मन, इसको, ये मछली का नाम है, सैल्मन मछली। I repeat the words meaning of unit number 7, the woman and the bear, first paragraph. Tale, कहानी। Invite, दावत देना। Adopts, गोद ले लेना। Orphan, यतीम। पोलर बियर, बर्फानी रीछ। हार्ट वार्मिंग, दिल गरमाने वाली। स्टार्क, वीरान। शोर्स, किनारे। आइसी, बर्फीले। आर्कटिक, कुतुब शुमाली। सैल्मन, सैमन मछली। स्टूडेंट्स, अब यूनिट नंबर 7 द वुमेन एंड हर बियर की ट्रांसलेशन जो है वो शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। लॉन्ग अगो इन द फार नॉर्थ, बहुत अरसा पहले दूर दराज शमाल में, दे लिव्ड अ विलेज ऑफ पीपल नोन एज द इनुइट, लोगों का एक गांव आबाद था जो इनुइट कहलाते थे। They lived on the shores of the icy Arctic, and they depended upon the fishing of the salmon and seal and the hunting of the creatures of the snow to feed themselves. And they depended upon the fishing, और अपनी खुराक के लिए इनका इन्हिसार सैल्मन एंड सील एंड द हंटिंग ऑफ द क्रिएचर्स, सामन और सील की माहीगीरी और बर्फानी महलूकात के शिकार पे था। ऑल द यंग मैन ऑफ द विलेज वर हंटर्स एंड फिशरमैन, गाँव के सारे जवान मर्द शिकारी और मछेरे थे। वन ओल्ड वूमन लिव्ड अलोन, एक बूढ़ी खतून अकेली रहती थी। शी हैड नो हस्बैंड, उसका कोई हावन न था। एंड नो सन, और ना ही कोई बेटा था। टू हंट और फिश हर, जो उसके लिए शिकार करते या मछली पकड़ते। दो हर नेबर्स शेयर्ड हर फूड विद हर, एज वाज देयर कस्टम, शी वाज लोनली, अगरचे इसके हमसाए इसके साथ अपना खाना बांटते थे क्योंकि ये इनका रवाज था, वो अकेली थी। शी लॉन्ग्ड फॉर अ फैमिली ऑफ हर ओन, वो अपने ख़ानदान की ख्वाहिश करती थी। शी ऑफन वॉक्ड अलॉन्ग द शोर लुकिंग फॉर आउट टू सी, प्रेइंग दैट द गॉड्स माइट सेंड हर अ सन।
शी ऑफन वॉक अलॉन्ग द शोर, वो अक्सर समुंदर के किनारे लुकिंग फॉर आउट टू सी, दूर समुंदर में देखते हुए, प्रेइंग ये दुआ करती, दैट द गॉड्स माइट सेंड हर अ सन, कि देवता उसको एक बेटा दे दें। वन कोल्ड विंटर डे, मौसम सरमा के एक दिन, द वूमेन वॉज वॉकिंग बाय द सी, वो औरत समुंदर के किनारे चल रही थी, व्हेन शी स्पॉटेड अ टाइनी वाइट पोलर बियर सिटिंग ऑल अलोन ऑन द थिक आइस, जब उसकी नज़र छोटे से एक सफ़ेद बर्फ़ानी रीछ पर पड़ी जो कि मोटी बर्फ़ पर बिल्कुल तन्हा बैठा हुआ था। एट वंस शी फेल्ट अ किनशिप टुवर्ड्स हिम, फ़ौरन औरत के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। फॉर ही लुक्ड एज लोनली एज शी, क्योंकि वो भी उसकी तरह अकेला दिखाई देता था। हिज मदर वॉज नोवेयर इन साइट, उसकी माँ कहीं नज़र नहीं आती थी। सम वन मस्ट हैव किल्ड हर, ज़रूर किसी ने इसे हलाक कर डाला होगा। शी सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा। एंड शी वॉक्ड इनटू द आइस, और वो बर्फ़ में चल कर गई। पिक्ड अप द कब, रीछ का बच्चा उठा ले, कब कहते हैं रीछ के बच्चे को, रीछ का बच्चा उठा लिया। एंड लुक्ड इनटू हिज आइज़, और उसकी आंखों में देखा। यू विल बी माई सन, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। शी सेड, उसने कहा। शी कॉल्ड हिम क्यूनिक, उसने उसका नाम क्यूनिक रखा। आई रिपीट, long ago in the far north there lived a village of people known as the Inuit. बहुत अरसा पहले दूर दराज शुमाल में लोगों का एक गांव आबाद था जिसको लोग इनुइट कहते थे। They lived on the shores of the icy Arctic and they depended upon the fishing of the salmon and seal and the hunting of the creatures of the snow to feed themselves. वो कुतुब शुमाली के साहलों पर रहते थे और अपनी खुराक के लिए इनका इन्हिसार सामन और सील की माहीगीरी और बर्फ़ानी महलूकात के शिकार पर था। All the young men of the village were hunters and fishermen. गांव के सारे जवान मर्द शिकारी और मछेरे थे। One old woman lived alone. सिर्फ एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। She had no husband and no son. ना ही उसका बेटा और ना ही हामन था। To hunt or fish for her, जो उसके लिए शिकार करते या मछली पकड़ते। Though her neighbors shared their food with her, अगरचे उसके हमसाए उसके साथ अपनी खुराक बांटते। As she was their custom, जैसा कि उनका रवाज था, she was lonely, वो अकेली थी। She longed for a family of her own, वो अपने ख़ानदान की तमन्ना करती थी। She often walked along the shore looking for out to sea, वो अक्सर समुंदर के किनारे किनारे दूर समुंदर में देखते हुए praying ये दुआ करती, that the gods might send her a son, के देवता उसे एक बेटा दे दें। वन कोल्ड विंटर डे, मौसम सरमा के एक दिन, द वुमेन वॉज वॉकिंग बाय द सी, औरत समुंदर के किनारे पर चल रही थी। व्हेन शी स्पॉटेड अ टाइनी वाइट पोलर बियर सिटिंग ऑल अलोन ऑन द थिक आइस, जब उसकी नज़र छोटे से एक सफ़ेद बर्फ़ानी रीछ पर पड़ी जो कि वहाँ पे बिल्कुल अकेला था। एट वंस शी फेल्ट अ किनशिप टुवर्ड्स हिम, फ़ौरन औरत के दिल में इसके लिए कुर्बत पैदा हो गई। फॉर ही लुक्ड एज लोनली एज शी, क्योंकि वो भी इसकी तरह ही अकेला दिखाई देता था। हिज मदर वॉज नोवेयर इन साइट, उसकी माँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। समवन मस्ट हैव किल्ड हर, शायद ज़रूर किसी ने इसको हलाक कर डाला होगा।
शी सेड सॉफ्टली, उसने नरमी से कहा, एंड शी वॉक इन टू द आइस, और वो बर्फ़ में चल कर गई। पिक्ड अप द कब, रीछ के बच्चे को उठाया, एंड लुक्ड इन टू हिज आइज़, और उसकी आंखों में देखा। यू विल बी माई सन, तुम मेरे बेटे बनोगे। शी सेड, उसने कहा। शी कॉल्ड हिम क्योनिक, उसने उसका नाम क्योनिक रखा। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। द ओल्ड वुमेन टुक द कव बैक टू हर होम। फ्रॉम दैट डे ऑन शी शेयर्ड ऑल हर फूड विद क्यूनिक, एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड grew between them. The village children loved Kunik too. Now the woman was never lonely, for her son, the bear, and all the village children kept her company all day. Kunik was gentle with the children as if they were his brothers and sisters. Kunik grew taller and smarter. The children taught him to fish. By spring time, he was fishing on his own, and every afternoon he came home carrying fresh salmon for his mother. The old woman was now the happiest of all the villagers. She had plenty of food and a son she loved with all her heart. She was so proud of her little bear that whenever he returned home, she would say proudly to anyone nearby, "He is the finest fisherman in all the village." I repeat. The old woman took the cub back to her home. From that day on, she shared all her food with Kunik, and a strong bond grew between them. The village children loved Kunik too. Now the woman was never lonely, for her son, the bear, and all the village children kept her company all day. Kunik was gentle with the children as if they were his brothers and sisters. Kunik grew taller and smarter. The children taught him to fish. By springtime, he was fishing on his own, and every afternoon he came home carrying fresh salmon for his mother. The old woman was now the happiest of all the villagers. She had plenty of food and a son she loved with all her heart. She was so proud of her little bear that whenever he returned home, she would say proudly to anyone nearby, "He is the finest fisherman in all the village." स्टूडेंट, अब हम सेकंड पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं।
सील, ये नेम है, सील ही कहते हैं इसको, सील, सील। हंटर्स, शिकारी, हंटर्स शिकारी। शिकारी ऐसे लोगों को कहते हैं जो शिकार करते हैं। शेयर्ड, बांटना, शेयर बांटना। शेयर का मतलब ये भी होता है कि अपनी चीज़ किसी दूसरे को दे देना, ठीक है। जिस तरह बच्चों आप थोड़ी सी मैं आउट ऑफ टच होने लगा हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको मालूम हो कि जिस तरह के आजकल के हालात हैं तो कोविड-19 की वजह से, तो सब बच्चों को अपनी चीज़ें जो हैं खेलने के लिए दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बड़े जो और छोटे सब बच्चे घरों में मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ शेयर करें अपनी चीज़ों को, ताकि या मोहल्ले के उन बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सकें और वो अपना वक्त बिता सकें। शेयर बांटना। लोनली, अकेला, लोनली, अकेला। स्पॉटेड, देखा, स्पॉटेड, देखा। थिक, मोटा, थिक, मोटा। साइट, नज़र या नज़ारा भी कहा जाता है, नज़र या नज़ारा। क्रिएचर्स, महलूकात। क्रिएचर्स, महलूकात। फिशरमैन, मछेरे। फिशरमैन, मछेरे। मछेरे कहते हैं जो मछलियों का शिकार करने के लिए समुद्र में जाते हैं, ऐसे लोगों को उर्दू में मछेरे और इंग्लिश में फिशरमैन कहते हैं। कस्टम, रवाज। इसका दूसरा मतलब तरीका भी होता है। लॉन्ग, तमन्ना करना। लॉन्ग, तमन्ना करना। तमन्ना करना से मुराद होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है तो उसकी ख्वाहिश करना। टाइनी, छोटा। और ये बात ज़हन में रखें कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं जो बड़ी चीज़ या छोटी को, तो दो चीज़ों के दरमियान हम कभी एक चीज़ को सामने रख के ये नहीं उसको कंपेयर कर सकते कि ये कंपेयर करने के बाद कि ये छोटी है। वैसे वो अपने छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ ये बात ज़हन में रखें कि अगर हमने किसी दो चीज़ों के मुकाबले में फ़ैसला करना है कि ये बड़ी है ये छोटी है, तो उनको सामने देख के फिर बात की जाएगी कि ये टाइनी है या नहीं है। किनशिप, कराबत। या इसका दूसरा मतलब साथ भी हो सकता है। किनशिप, कराबत या साथ। सॉफ्टली, नरमी से। सॉफ्टली, नरमी से। आई रिपीट, द
Student, I repeat the words meaning of second para of unit number 7, the woman and her bear. सील, सील ये एक मछली की किस्म है. हंटर्स, शिकारी. शेयर्ड, बांटना. लोनली, अकेला. स्पॉटेड, देखा. थिक, मोटा. साइड, नज़र या नज़ारा. क्रिएचर्स, महलूकात. फिशरमैन, मछेरे. कस्टम, रवाज या तरीका. लॉन्ग, तमन्ना करना. टाइनी, छोटा. किनशिप, कराबत या साथ. सॉफ्टली, नरमी से. स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन शुरू करते हैं. द ओल्ड वुमन टुक द कब बैक टू हर होम. बूढ़ी खतून रीछ के बच्चे को अपने घर ले आई. फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, शी शेयर्ड ऑल हर फूड विद क्यूनिक. वो अपना सारा खाना क्यूनिक के साथ बांटती. एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ग्रू बिटवीन देम. और उनके दरमियान एक मजबूत तल्लक कायम हो गया. बॉन्ड होता है तल्लक, ग्रू बढ़ जाना. द विलेज चिल्ड्रन लव्ड क्यूनिक टू. गांव के बच्चे भी क्यूनिक से प्यार करते थे. नाउ द वुमन वाज नेवर लोनली फॉर हर सन. अब औरत कभी अकेली ना रहती क्योंकि इसका बेटा भी उसके साथ होता. The bear, reach and all the village children kept her company all day. और गांव के सारे बच्चे सारा दिन उनके साथ रहते. क्यूनिक was gentle with the children as if they were his brothers and sisters. क्यूनिक बच्चों के साथ शरीफाना रवैया रखता था जैसे कि वो उसके बहन भाई हों. क्यूनिक ग्रू टॉलर एंड स्मार्टर. क्यूनिक लंबा और चुस्त होता गया. द चिल्ड्रन टॉट हिम टू फिश. बच्चों ने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया. बाय स्प्रिंग टाइम ही वॉज फिशिंग ऑन हिज ओन. बाहर के आने तक वो खुद मछली पकड़ने लगा. एंड एवरी आफ्टरनून ही केम होम कैरिंग फिश सैल्मन फॉर हिज मदर. और हर शाम वो अपनी माँ के लिए ताज़ा सैमन मच्छी लेकर घर आता. द ओल्ड वुमन वॉज नाउ द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल द विलेजर्स. बूढ़ी खतून अब गाँव में सबसे ज़्यादा खुश थी. शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड. उसके पास बहुत ज़्यादा खुराक थी. एंड अ सन, और एक ऐसा बेटा था. शी लव्ड विद ऑल हर हार्ट. जिसको वो पूरे दिल से मोहब्बत करती थी. शी वॉज सो प्राउड ऑफ हर लिटल बियर. वो अपने नन्हे से रीछ पर बहुत फख्र करती थी. दैट वेन एवर ही रिटर्न होम. जब भी वो घर लौटता, शी वुड से प्राउडली टू एनी वन नियर बाय. तो वो फख्र से करीब हर किसी से कहती, ही इज़ द फाइनेस्ट फिशरमैन इन ऑल द विलेज. ये इस पूरे गांव में सबसे उम्दा मछेरा है.
I repeat, second paragraph. The old woman took the cup back to her home. The old woman took the cup back to her home. बूढ़ी हतून रीछ के बच्चे को अपने घर ले आई. From that day on, उस दिन से she shared all her food with Kunik. वो अपना सारा खाना क्यूनिक के साथ बांटती. स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ. द ओल्ड वुमेन टुक द कप बैक टू हर होम. बूढ़ी हतून रीछ के बच्चे को अपने घर ले आई. फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से शी शेयर्ड ऑल हर फूड विद क्यूनिक. वो अपना सारा खाना क्यूनिक के साथ बांटती. एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ग्रू बिटवीन देम. और उनके दरमियान एक तल्लक आपस में कायम हो गया. द विलेज चिल्ड्रन लव्ड क्यूनिक टू. गाँव के बच्चे भी क्यूनिक से प्यार करते थे. नाउ द वुमेन वॉज नेवर लोनली. अब बूढ़ी हतून अकेली ना थी. फॉर हर सन, क्योंकि उसका बेटा भी उसके साथ था. द बियर, रीच एंड ऑल द विलेज चिल्ड्रन केप्ट हर कंपनी ऑल डे. और गांव के तमाम बच्चे सारा दिन उनके साथ रहते. क्यूनिक वॉज जेंटल विद द चिल्ड्रन. क्यूनिक भी बच्चों के साथ बहुत शरीफाना रवैया रखता. एज इफ़ दे वर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. जैसा कि वो उसके बहन भाई हों. क्यूनिक ग्रू टॉलर एंड स्मार्टर. क्यूनिक लंबा और चुस्त होता गया. द चिल्ड्रन टॉट हिम टू फिश. बच्चों ने उसको मछली पकड़ना सिखा दिया. बाय स्प्रिंग टाइम ही वॉज फिशिंग ऑन हिज ओन. बाहर के आने तक वो खुद मछली पकड़ने लगा. एंड एवरी आफ्टरनून ही केम होम कैरिंग फ्रेश सैल्मन फॉर हिज मदर. और हर शाम वो अपनी माँ के लिए ताज़ा सैल्मन मछली लेकर घर आता. द ओल्ड वुमेन वॉज नाउ द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल द विलेजर्स. बूढ़ी हतून अब गाँव वालों में सबसे ज़्यादा खुश थी. शी हैड प्लेंटी ऑफ फूड. उसके पास बहुत ज़्यादा खुराक थी. एंड ए सन, और एक बेटा था. शी लव्ड विद ऑल हर हार्ट. जिसको वो दिल से मोहब्बत करती थी. शी वॉज सो प्राउड ऑफ हर लिटल बियर. उसको अपने छोटे से रीछ पर बहुत फ़ख्र था. दैट व्हेन एवर ही रिटर्न होम, कि जब भी वो घर लौटता, शी वुड से प्राउडली टू एनी वन नियर बाय. तो जो भी उसके करीब होता वो उसको फ़ख्र से कहती, ही इज़ द फाइनेस्ट फिशरमैन इन ऑल द विलेज. ये सारे गांव में सबसे उम्दा मछेरा है. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं. बिफोर लॉन्ग द मैन बिगैन टू विस्पर अमंग themselves. They knew the bear was the most skillful fisherman. They began to feel envious. What will we do? They asked each other. The bear brings home the fattest seals and the biggest salmon. He must be stopped, one of the men said. He must be stopped, one of the men said. He puts us to shame. We shall have to kill him. He has grown far too big, one man said. One by one, the others agreed. For their envy made them stupid and mean. Yes, the others said, he is danger to our families. A little boy overheard the men talking. He ran to the old woman's home to tell her
of the terrible plan. She threw her arms around her bear and wept. She begged each man not to kill her beautiful bear. Kill me instead, she wept. He is fed and will make a great feast for the whole village. Some said, the others said, he is danger to our children and we cannot let him live. The old woman saw that the men were determined to kill her son. She rushed home and told Koenig, your life is in danger, you must run away and don't return my child, but do not go so far that I cannot find you, she whispered. Her heart was breaking. Koenig had tears in his eyes, but he obeyed his mother's wishes. I repeat, second paragraph. Before long, the men began to whisper among themselves. They knew the bear was the most skillful fisherman. They began to feel envious. What will we do? They asked each other, that bear brings home the fattest seals and the biggest salmon. He must be stopped. One of the men said, he puts us to shame. We shall have to kill him. He has grown far too big. One man said. One by one, the others agreed, for their envy made them stupid and mean. Yes, the others said, he is danger to our families. A little boy overheard the men talking. He ran to the old woman's home to tell her of the terrible plan. She threw her arms around her bear and wept. She begged each man not to kill her beautiful bear. Kill me instead, she wept. He is fed and will make a great feast for the whole village. Some said, the others said, he is a danger to our children and we cannot let him live. The old woman saw that the men were determined to kill her son. She rushed home and told Koenig, your life is in danger. You must run away, and do not return my child. But do not go so far that I cannot find you, she whispered. Her heart was breaking. Koenig had tears in his eyes, but he obeyed his mother's wishes. स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 7 द वुमेन एंड हर बियर के थर्ड पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग करते हैं।
कोट, कोट कहते हैं खाल को, कोट खाल। कब, रीछ का बच्चा, कब, रीछ का बच्चा। स्प्रिंग, बहार, स्प्रिंग बहार। प्लेंटी, बाकसरत, या बहुत ज़्यादा। प्लेंटी, बाकसरत या बहुत ज़्यादा। विस्पर, सरगोशी करना। विस्पर, सरगोशी करना। सरगोशी से मुराद होता है कि एक दूसरे के कान में जो हम आहिस्तगी से बात करते हैं उसको सरगोशी करना कहते हैं। वैसे बेटा मैं आपको एक हदीस बता दूं अल्लाह के नबी की, कि महफ़िल में ये इस तरह करना अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया है। यानी हम जब दो से ज़्यादा आदमी किसी जगह इकट्ठे हों तो वहाँ पे दो आदमी एक दूसरे के साथ मिलके बिल्कुल आहिस्तगी से बात करें, तो अल्लाह के नबी ने ऐसी हरकत को जो है उसको सख्ती से मना फरमाया है। तो विस्पर, सरगोशी करना। एनवियस, हसद या हासिद। एनवियस, हसद या हासिद। हासिद कहते हैं ऐसे इंसान को जो दूसरे इंसान से हसद करे, उसको एनवियस कहा जाता है। एनवाय, हसद करना। एनवाय, हसद करना। डिटरमिन्ड, पुरअज़्म। डिटरमिन्ड, पुरअज़्म। टीयर्स, आंसू। टीयर्स, आंसू। कंपनी, सोहबत। हैप्पीएस्ट, खुश तरीन। हैप्पीएस्ट, खुश तरीन। प्राउड, फहर करने वाला। प्राउड, फहर करने वाला। स्किलफुल, माहिर। स्किलफुल, माहिर। शेम, शर्मिंदगी। शेम, शर्मिंदगी। टेरिबल, खौफनाक। टेरिबल, खौफनाक। रश्ट, तेजी से भागे। रश्ट, तेजी से भागे। ग्रीव्ड,
गमज़दा, grieved, गमज़दा. Students, I repeat the words meaning. कोट, खाल, कब, रीछ का बच्चा, स्प्रिंग, बहार, प्लेंटी, बकसरत या बहुत ज़्यादा, विस्पर, सरगोशी करना, एनवियस, हसद या हासिद, एनवाय, हसद करना, डिटरमिन, पुरअज़्म, टीयर्स, आंसू, कंपनी, सोहबत, हैप्पीएस्ट, खुशतरीन, प्राउड, फ़ख्र करने वाला, स्किलफुल, माहिर, शेम, शर्मिंदगी, टेरिबल, खौफनाक, रश्ट, तेज़ी से भागी, ग्रीव्ड, गमज़दा. स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. बिफोर लॉन्ग, ज़्यादा अरसा ना गुज़रा, द मैन बिगैन टू विस्पर अमंग देमसेल्व्स, के आदमियों ने आपस में सरगोशियाँ शुरू कर दी. दे न्यू, वो जानते थे, दैट द बियर वॉज द मोस्ट स्किलफुल फिशरमैन, कि रीछ सबसे माहिर मछेरा है. They began to feel envious. वो हसद करने लगे. What will we do? हम क्या करेंगे? They asked each other. उन्होंने एक दूसरे से पूछा. That bear brings home the fattest seals and the biggest salmon. वो रीछ सबसे मोटी सीलें और सबसे बड़ी सैमन मछली घर लेकर आता है. He must be stopped. उसे ज़रूर रोकना चाहिए. वन ऑफ द मैन सेड, एक आदमी ने कहा, ही पुट्स अस टू शेम, वो हमें शर्मिंदा करता है. वी शैल हैव टू किल हिम, हमें उसे कत्ल करना पड़ेगा. ही हैज़ ग्रोन फॉर टू बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा. वन बाय वन द अदर्स एग्रीड, एक एक करके दूसरों ने उसके साथ इत्फाक किया. फॉर देयर एनवाय मेड देम स्टूपिड एंड मीन, क्योंकि उनके हसद ने उनको पागल और कमीना बना दिया था. स्टूपिड होता है पागल, मीन कमीना. यस, हाँ. द अदर्स सेड, दूसरों ने कहा. ही इज़ डेंजर टू आवर फैमिलीज़, ये हमारे ख़ानदानों के लिए ख़तरा है. अ लिटिल बॉय ओवरहर्ड द मैन टॉकिंग, एक छोटे लड़के के कान में आदमियों की बात पड़ गई. ही रैन टू द ओल्ड वुमेंस होम टू टेल हर ऑफ द टेरिबल प्लान, वो भाग कर बूढ़ी औरत के घर इसको खौफनाक मंसूबे के बारे में बताने के लिए गया. शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर बियर एंड वेप्ट, वो अपने दोनों बाजू रीछ के गिर डालकर रोने लगी. शी बेग्ड ईच मैन नॉट टू किल हर ब्यूटीफुल बियर, उसने हर आदमी से इल्तिजा की कि वो उसके खूबसूरत रीछ को ना मारे. किल मी इंस्टेड, इसकी बजाय मुझे मार लो. शी वेप्ट, वो रोने लगी. ही इज़ फैट एंड विल मेक अ ग्रेट फीस्ट फॉर द होल विलेज, वो मोटा ताज़ा है और सारे गांव के लिए एक बड़ी दावत बन जाएगा. सम सेड, कुछ ने कहा. द अदर सेड, दूसरों ने कहा. ही इज़ डेंजर टू आवर चिल्ड्रन एंड वी, वो हमारे बच्चों के लिए ख़तरा है. एंड वी कैन नॉट लेट हिम लिव, और हम उसे ज़िंदा नहीं रहने देंगे. द ओल्ड वुमन सॉ दैट द मैन वर डिटरमिन्ड टू किल हर सन, बूढ़ी औरत ने देखा कि लोग उसके बेटे को कत्ल करने के लिए पुख्ता इरादा रखते हैं. शी रश्ड होम,
वो भाग कर घर गई एंड टोल्ड क्यूनिक, और क्यूनिक को बता दिया, योर लाइफ इज़ इन डेंजर, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, यू मस्ट रन अवे, तुम्हें ज़रूर भाग जाना चाहिए। रन अवे एंड डू नॉट रिटर्न माई चाइल्ड, भाग जाओ और मेरे बच्चे वापस ना आना। बट डू नॉट गो सो फार दैट आई कैन नॉट फाइंड यू, लेकिन इतनी दूर न चले जाना कि मैं तुम्हें तलाश न कर सकूं। शी विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। हर हार्ट वॉज ब्रेकिंग, उसका दिल टूट रहा था। क्यूनिक हैड टीयर्स इन हिज आइज़, क्यूनिक की आंखों में आंसू थे। बट ही ओबेड हिज मदर्स विशेज़, लेकिन उसने अपनी माँ की ख्वाहिशात की पैरवी की। आई रिपीट, बिफोर लॉन्ग द मैन बिगैन टू विस्पर अमंग देमसेल्व्स, ज़्यादा अरसा ना गुजरा कि लोग आदमियों ने आपस में सरगोशियाँ शुरू कर दी। दे न्यू, वो जानते थे, द बियर वॉज द मोस्ट स्किलफुल फिशरमैन, के रीछ सबसे माहिर मछेरा है। दे बिगैन टू फील एनवियस, वो हसद करने लगे। वट विल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। दे आस्क्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से पूछा। द बियर ब्रिंग्स होम द फैटेस्ट सील्स एंड द बिगेस्ट सैल्मन, रीछ सबसे मोटी सीलें और सबसे बड़ी सैमन मछली घर लेकर आता है। ही मस्ट बी स्टॉप, उसको ज़रूर रोका जाना चाहिए। वन ऑफ द मैन सेड, उनमें से एक आदमी ने कहा। ही पुट्स अस टू शेम, वो हमें शर्मिंदा करता है। वी शैल हैव टू किल हिम, हमें उसे कत्ल करना पड़ेगा। ही हैज़ ग्रोन फार टू बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। वन मैन सेड, एक आदमी ने कहा। वन बाय वन द अदर्स एग्रीड, एक एक करके दूसरों ने उससे इत्फाक किया। फॉर देयर एनवाई मेड देम स्टूपिड एंड मीन, क्योंकि उनके हसद ने उन्हें पागल और कमीना बना दिया था। यस, हाँ, द अदर सेड, दूसरों ने कहा। ही इज़ डेंजर टू आवर फैमिलीज़, वो हमारे ख़ानदानों के लिए ख़तरा है। A little boy overheard the men talking. A little boy overheard the men talking. एक छोटे लड़के के कान में आदमियों की बात पड़ गई। He ran to the old woman. वो भागकर बूढ़ी औरत के घर गया। टू टेल हर ऑफ द टेरिबल प्लान, ताकि उसको उसके खौफनाक मंसूबे के बारे में बताने लगा। एक छोटे लड़के के कान में आदमियों की बात पड़ गई। वो भागकर बूढ़ी औरत के घर उसको खौफनाक मंसूबे के बारे में बताने गया। शी थ्रू हर आर्म्स, उसने अपने दोनों बाजू अराउंड हर बियर, अपने रीछ के गिर डाल दिए। एंड वेप्ट, और रोने लगी। शी बेग्ड ईच मैन नॉट टू किल हर ब्यूटीफुल बियर, उसने हर आदमी से इल्तिजा की कि वो उसके खूबसूरत रीछ को ना मारे। किल मी इंस्टेड, इसकी बजाय मुझे मार दो। शी वेप्ट, वो रोने लगी। ही इज़ फैट एंड विल मेक अ ग्रेट फीस्ट फॉर द होल विलेज, वो मोटा है और सारे गांव के लिए एक दावत बन जाएगा। सम सेड, कुछ ने कहा। द अदर सेड, दूसरों ने कहा। ही इज़ डेंजर टू आवर चिल्ड्रन, वो हमारे बच्चों के लिए खतरा है। एंड वी कैन नॉट लेट हिम लिव, और हम उसके ज़िंदा नहीं रहने देंगे। द ओल्ड वुमन सॉ दैट द मैन वर डिटर्मिन्ड टू किल हर सन, बूढ़ी औरत ने देखा कि लोग इसके बेटे को कत्ल करने का पुख्ता इरादा रखते थे। शी रश्ड होम, वो भागकर घर गई। एंड टोल्ड क्यूनिक, और क्यूनिक को बता दिया। योर लाइफ इज़ इन डेंजर, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। यू मस्ट रन अवे, तुम्हें ज़रूर भाग जाना चाहिए। रन अवे एंड डू नॉट रिटर्न
माई चाइल्ड, भाग जाओ और मेरे बच्चे वापस ना आना, बट डू नॉट गो सो फार दैट आई कैन नॉट फाइंड यू, लेकिन इतनी दूर ना चले जाना कि मैं तुम्हें तलाश न कर सकूं। शी विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। हर हार्ट वॉज ब्रेकिंग, इसका दिल टूट रहा था। क्यूनिक हैड टीयर्स इन हिज आइज, क्यूनिक की आंखों में आंसू थे। बट ही ओबेड हिज मदर विशेज़, लेकिन उसने अपनी माँ की ख्वाहिशात की पैरवी की। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। फॉर मैनी डेज द ओल्ड वुमेन एंड द चिल्ड्रन ग्रीव्ड देयर लॉस। One day the old woman went out in search of the bear. After many hours they saw her bear running toward her. He was fat and strong, and his coat was shimmering white. They embraced, and the old woman whispered, I love you, my son. But Kunik could see that his mother was hungry, and so he ran to get her fresh meat and fish. With tears in her eyes, the old woman cut up the seal and gave her son the choicest slice of blubber. Promising to return the next day, she set off for home, carrying her meat, her heart filled with joy. The next day, as she had promised, she went to visit her son. And every day after that, the old woman and her son met, and the bear brought his mother fresh meat and fish. After a while, the villagers grew to understand that the love between the woman and the bear was strong and true. And from that point on, they told with pride and respect the tale of the unbroken love between the old woman and her son. I repeat. For many days, the old woman and the children grieved their loss. One day, the old woman went out in search of the bear. After many hours, she saw her bear running toward her. He was fat and strong, and his coat was shimmering white. They embraced, and the old woman whispered, I love you, my son. But Kunik could see that his mother was hungry, and so he ran to get her fresh meat and fish. With tears in her eyes, the old woman cut up the seal and gave her son the choicest slices of blubber. Promising to return the next day, she set off for home, carrying her meat, her heart filled with joy. The next day, as she had promised, she went to visit her son. And every day after that, the old woman and her son met, and the bear brought his mother fresh meat and fish. After a while, the villagers grew to understand that the love between the woman and the bear was strong and true. And from that point on, they told with pride and respect the tale of the unbroken love between the old woman and her son. स्टूडेंट्स हम पैराग्राफ नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं।
शिमरिंग, चमकना, शिमरिंग, चमकना, एम्ब्रेस्ड, गले लगाना, गोद में ले लेना, एम्ब्रेस्ड, गले लगाना या गोद में ले लेना। चॉइसेस्ट, सबसे ज़्यादा मुंतहिब, चॉइसेस्ट, सबसे ज़्यादा मुंतहिब। स्लाइसिस, टुकड़े, स्लाइसिस, टुकड़े। ब्लबर, चर्बी, ब्लबर, चर्बी। सेट ऑफ, रवाना हुए, सेट ऑफ, रवाना हुए। पॉइंट, नुक्ता, पॉइंट, नुक्ता। प्राइड, फहर, प्राइड, फहर। रिस्पेक्ट, इज्जत, रिस्पेक्ट, इज्जत। अनब्रोकन, ना टूटने वाला, अनब्रोकन, ना टूटने वाला। लव, प्यार, लव, प्यार। आई रिपीट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 4। शिमरिंग, चमकना, एम्ब्रेस्ड, गले लगाना, गोद में ले लेना, चॉइसेस्ट, सबसे ज़्यादा मुंतहिब, स्लाइसिस, टुकड़े, ब्लबर, चर्बी, सेट ऑफ, रवाना हुए, पॉइंट, नुक्ता, प्राइड, फहर, रिस्पेक्ट, इज्जत, अनब्रोकन, ना टूटने वाला, लव, प्यार। फॉर मैनी डेज, अब स्टूडेंट्स हम पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड वुमेन एंड द चिल्ड्रन ग्रीव देयर लॉस, बच्चे और बूढ़ी औरत अपने नुकसान पर गमज़दा थे। One day, the old woman went out in search of the bear. एक दिन बूढ़ी औरत रीछ की तलाश में बाहर गई। After many hours, कई घंटों के बाद, she saw her bear running towards her. उसने अपने रीछ को अपनी तरफ दौड़कर आते देखा। He was fat and strong. वो मोटा और मजबूत था। And his coat was shimmering white. और उसकी खाल सफ़ेद चमक रही थी। They embraced. उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। And the old woman whispered.
और बूढ़ी औरत ने सरगोशी की, आई लव यू माई सन, मेरे बेटे मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। बट क्यूनिग कुड सी दैट हिज मदर वॉज हंग्री एंड सो ही रैन टू गेट हर फ्रेश मीट एंड फिश। लेकिन क्यूनिग देख सकता था कि इसकी माँ भूखी है, इसके लिए वो ताज़ा गोश्त और मछली लेने भागा। विद टीयर्स इन हर आइज, आँखों में आंसू लिए, द ओल्ड वुमन कट अप द सील, बूढ़ी औरत ने सील काटी, एंड गेव हर सन द चेसेस्ट स्लाइसिस ऑफ ब्लबर, और अपने बेटे को चर्बी के पसंदीदा तरीन टुकड़े दिए। प्रॉमिसिंग टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, अगले दिन वापस आने का वादा करके, शी सेट ऑफ हर होम, वो अपने घर रवाना हो गई। कैरिंग हर मीट, अपना गोश्त ले जाते हुए, हर हार्ट फिल्ड विद जॉय, उसका दिल खुशी से भर गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज शी हैड प्रॉमिस, जैसा कि उसने वादा किया था, शी वेंट टू विजिट हर सन, वो अपने बेटे से मिलने चली गई। एंड एवरी डे आफ्टर दैट, और इसके बाद हर दिन, द ओल्ड वुमन एंड हर सन मेट, बूढ़ी खतून और उसका बेटा मिलते, एंड द बियर ब्रॉट हिज मदर फ्रेश मीट एंड फिश, और रीच हर रोज़ अपनी माँ के लिए ताज़ा गोश्त और मछली लाता। आफ्टर अ वाइल, कुछ अरसा बाद, द विलेजर्स ग्रू टू अंडरस्टैंड, गांव वालों ने समझ लिया दैट द लव बिटवीन द वुमेन एंड द बियर वाज स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू, कि औरत और रीछ के दरमियान सच्ची और मजबूत मोहब्बत है। एंड फ्राम दैट पॉइंट ऑन, और फिर इस नुक्ता नज़र से, दे टोल्ड विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट द टेल ऑफ द अनब्रोकन लव बिटवीन द ओल्ड वुमेन एंड हर सन, वो फ़ख्र और एहतराम के साथ बूढ़ी खतून और उसके बेटे के दरमियान ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत की कहानी सुनाते थे। आई रिपीट, For many days, the old woman and the children grieved their loss. कई दिनों तक बूढ़ी खतून और बच्चे अपने नुकसान पर गमज़दा थे। One day, the old woman went out in search of the bear. एक दिन बूढ़ी औरत रीछ की तलाश में बाहर गई। After many hours, काफ़ी घंटों के बाद, she saw her bear running towards her. उसने अपने रीछ को अपनी तरफ तोड़कर आते हुए देखा। He was fat and strong, वो मोटा और मजबूत था, and his coat was shimmering white, और उसकी खाल सफ़ेद चमक रही थी। They embraced, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, and the old woman whispered, और बूढ़ी खतून ने सरगोशी की, I love you my son, मेरे बेटे मुझे तुमसे मोहब्बत है। But Koenig could see दैट हिज मदर वॉज हंग्री, लेकिन क्यूनिग देख सकता था कि उसकी माँ भूखी है, एंड सो ही रैन टू गेट हर फ्रेश मीट एंड फिश, और वो इसके लिए ताज़ा गोश्त और मछली लाने भागा। विद टीयर्स इन हर आइज़, अपनी आँखों में आंसू लिए, द ओल्ड वुमन कट अप द सील, बूढ़ी खतून ने सील काटी, एंड गेव हर सन द चेसेस्ट स्लाइसिस ऑफ ब्लबर। द ओल्ड वुमन कट अप द सील, बूढ़ी खतून ने सील काटी, एंड गेव हर सन द चेसेस्ट स्लाइसिस ऑफ ब्लबर, और अपने बेटे को चर्बी के पसंदीदा तरीन टुकड़े दिए। प्रॉमिसिंग टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, अगले दिन वापस आने का वादा करके, शी सेट ऑफ फॉर होम, वो घर को रवाना हो गई। कैरिंग हर मीट, अपना गोश्त लिए हुए, हर हार्ट फिल विद जॉय, उसका दिल खुशी से भर गया। द नेक्स्ट डे, एज शी हैड प्रॉमिस्ड, अगले दिन चूँकि उसने वादा किया था, शी वेंट टू विजिट हर सन, वो अपने बेटे से मिलने चली गई। एंड एवरी डे आफ्टर, और उसके बाद रोज़ाना, द ओल्ड वुमन एंड हर सन मेट, बूढ़ी खतून और उसका बेटा मिलते, एंड द बियर ब्रॉट हिज मदर फ्रेश मीट एंड फिश, और रीच हर रोज़ अपनी माँ के लिए ताज़ा गोश्त और मछली लाता। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द विलेजर्स ग्रू टू अंडरस्टैंड, गाँव वालों को ये बात समझ आ गई, दैट द लव बिटवीन द वुमेन एंड द बियर वाज स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू, कि
औरत और रीछ के दरमियान प्यार सच्चा और मजबूत है। एंड फ्राम दैट पॉइंट ऑन, और फिर इस नुक्ता नज़र से दे टोल्ड विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट, वो फ़ख्र और एहतराम के साथ द टेल ऑफ द अनब्रोकन लव बिटवीन द ओल्ड वुमेन एंड हर सन, वो बूढ़ी खतून और उसके बेटे के दरमियान ना टूटने वाली मोहब्बत की कहानी सुनाते थे। क्लास 6 स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड दिस स्टोरी take place? Describe the place and weather. I repeat the question. Where did this story take place? Describe the place and weather. Answer. The story the woman and her bear takes place in the north on the shores of the icy Arctic Ocean. There is ice all around. The weather is so extremely cold that only particular creatures such as
polar bear, and seal etc. can survive. I repeat question. Where did this story take place? Describe the place and weather. Answer. The story, The Woman and Her Bear, takes place in the north on the shores of the icy Arctic Ocean. There is ice all around. The weather is so extremely cold that only particular creatures such as polar bear and seal, etc., can survive. Question number 2. Who is this tale about? There can be more than one character. The tale is about two characters that is an Inuit woman who was all alone and had no husband and sons and an orphan polar bear that she adopted as her son. I repeat second question. Who is this tale about? There can be more than one character. Answer. The tale is about two characters. An Inuit woman who was all alone and had no husband and sons, and an orphan polar bear that she adopted as her son. Question number 3. Why was
old woman lonely. Where did she often go to pray? What did she pray for? Answer. The old Inuit woman had no husband and sons. That was why she felt helpless and lonely. She would often walk along the seashore praying that the gods might send her a son to accompany her. I repeat the third question. Why was the old woman lonely? Where did she often go to pray? What did she pray for? Answer. The old Inuit woman had no husband and sons. That was why she felt helpless and lonely. She would often walk along the seashore, praying that the gods might send her a son to accompany her.
स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 51। क्वेश्चन, in the exercise below you have to decide which of the alternatives is punctuated correctly. You have to tick the correct answer. Options: number 1, I love eating biryani, kebabs, tikka and halim, and पे full stop है। सेकंड है आई लव ईटिंग बिरयानी, कबाब्स, टिक्का एंड हलीम। थर्ड पे है आई लव ईटिंग बिरयानी, कबाब्स, टिक्का एंड हलीम। इसमें जो पंक्चुएशंस हैं वो थर्ड पे ठीक लगाई गई हैं, तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो थर्ड है। नंबर 2, एज द सन वाज सेटिंग, Sultan was getting into bed. As the sun was setting, Sultan was getting into bed. और थर्ड है as the sun was setting, Sultan was getting into bed. इसमें जो सेकंड है ये इसका ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इसका आंसर सेकंड वाला है। नंबर 3, I love playing sports was always my favorite subject. I love playing sports was always my favorite subject. I love playing sports was always my favorite subject. इसमें जो नंबर 1 है उसमें पंक्चुएशंस बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर है 1। Number 4, there are many favorite subjects: English, Urdu, Islamiyat and music. There are many favorite subjects: English, Urdu, Islamiyat and music. These are my favorite subjects: English, Urdu, Islamiyat and music. Number 4, I repeat, these are my favorite subjects: English, Urdu, Islamiyat and music. These are my favorite subjects: English, Urdu, Islamiyat and music. These are my favorite subjects: English, Urdu, Islamiyat and music. And इसका जो आंसर है वो सेकंड जो है वो इसका बेस्ट आंसर है। नंबर 5, आई लव द आर्ट्स पीरियड, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग एंड स्प्रेइंग आर माय फेवरेट एक्टिविटीज़। आई लव द आर्ट्स पीरियड, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग एंड स्प्रेइंग आर माय favorite activities. I love the arts period, drawing, painting, coloring and spraying are my favorite activities. और इसमें जो पंक्चुएशंस ठीक हैं वो पहले ऑप्शन की राइट है। बेस्ट आंसर फर्स्ट पे है। Students, open your books, page number 53. Question, circle the correct helping verb in each sentence. Underline the main verb. Number 1, Nina options have, has, always gotten good grades. इसमें राउंड हम करेंगे हैज़ को। हैज़ को राउंड करेंगे और गॉटन को हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, मेहदी ऑप्शंस वाज, वर, लेइंग द टेबल,
when I got there। इसमें was को हम राउंड करेंगे और लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3, सना एंड सानिया ऑप्शंस इज आर आर्गुइंग अबाउट द डॉल्स। इसमें आर को हम राउंड करेंगे और आर्गुइंग को हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4, मीना डू ऑप्शन डू डज वांट टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। इसमें हम डज को राउंड करेंगे और पार्टिसिपेट को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5, आई ऑप्शंस हैं इज, एम, आर वर्किंग ऑन माय असाइनमेंट। इसमें एम को हम राउंड करेंगे और वर्किंग को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 6, आई ऑप्शंस हैं हैव, हैज़, हैड टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई कैन प्ले। इसमें हैव को हम राउंड करेंगे, फिनिश को और प्ले को, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इसमें हम 2 वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे जो मेन वर्ब हैं, एक फिनिश और एक प्ले। नंबर 7, आई ऑप्शन हैं डू, डज, डिड गो टू लंदन इन समर। इसमें डू को हम राउंड करेंगे और गो को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 8, माई अंकल ऑप्शंस हैं हैव, हैज़, हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड होम। इसमें हैड को जो है हम राउंड करेंगे और ऑलरेडी को और रीच्ड को हम जो है वो अंडरलाइन करेंगे। इसमें भी 2 मेन वर्ब्स हैं, एक ऑलरेडी और एक रीच्ड। Students, open your books, page number 54। इसमें क्वेश्चन है fill in the blanks with a, an, some, any, much, many, a lot of। इन वर्ड्स में से हमने वर्ड्स चूज़ करके जो ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। नंबर 1 है I did not buy a clip, I bought a shawl। I bought a shawl आएगा। नंबर 2, Neha does not have dash money। इसमें जो आंसर आएगा मच आएगा। Neha does not have much money। Number 3, I have not got dash furniture for my new room। इसमें आंसर आएगा any। I have not got any furniture for my new room। Number 4, we met dash interesting people at the meeting। इसमें आएगा many। We met many interesting people at the meeting। Number 5, how dash sugar do you want in your coffee? How much कितनी? How much sugar do you want in your coffee? Number 6, I drink dash water। I drink
a lot of, इसका आंसर है a lot of. I drink a lot of water. Number 7, I listen to dash music. इसका आंसर भी आएगा a lot of. I listen to a lot of music. Number 8, there are not dash hotel here. यहाँ पे आंसर इसका आएगा many. There are not many hotels here. Number 9, may I have dash apple, और इसका आएगा आंसर an. May I have an apple. Number 10, are there dash empty plots in this area? इसका आंसर आएगा any. Are there any empty plots in this area? Number 11, I have not got a camera, so I cannot take dash pictures. इसका आंसर भी आएगा any. I have not got a camera, so I cannot take any pictures. Number 12, how dash people are coming for dinner? और इसका आंसर है many. How many people are coming for dinner? Students, ये आपका यूनिट नंबर 7 विद एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.